عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد آج پاکستان پہنچेगा। وزارت خزانہ حکام سے مل کر بجٹ تجاویز تیار کرے گا۔ ٹیکس ریونیو اقدامات پر پاکستانی حکام سے مذاکرات ہوں گے۔ اخراجات پر کنٹرول اور ترقیاتی اخراجات سے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔ IMF وفد زرعی ٹیکس کی وصولی کے طریقہ کار پر عمل درآمد کے اہداف مقرر کرے گا۔ پنشن اسکیم اور عمل درآمد کو حتمی شکل دی جائے گی۔ قرض ادائیگیوں کے لیے بیرونی فائنانسنگ اور ترقیاتی پروگرام کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 1,20,796 پوائنٹس کی سطح کو چھو گیا۔ انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,19,652 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ وزیراعظم کا سٹاک مارکیٹ کی نئی بلند ترین سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار۔ ٹیرف سے امریکی سٹاک مارکیٹوں کو بڑا دھچکا۔ سرمایہ کاروں کے خربوں ڈالر ڈوب گئے۔ امریکی منڈیوں میں 5 سال کی بدترین مندی۔ نیسڈیک میں 6%، S&P 500 5% گراوٹ۔ ڈاؤ جونز میں 1,679 پوائنٹس کی کمی۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں نئی کساد بازاری کا خدشہ۔ عالمی مالیاتی ادارے بھی شدید دباؤ کا شکار۔ کوئی ملک اچھی پیشکش کرے تو ٹیرف پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ٹیرف پر جن ممالک کو خدشات ہیں وہ امریکہ میں فیکٹری لگائیں، انہیں کوئی ٹیرف نہیں دینا پڑے گا۔ ٹک ٹاک معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ٹک ٹاک معاہدے کی منظوری کی صورت میں چین کو ٹیرف میں ریلیف مل سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ کہا ایلان مسک چند ماہ میں حکومتی مشاورتی کردار چھوڑ سکتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دنیا میں امن چاہتا ہوں۔ روس اور یوکرین امن کی جانب بڑھ رہے ہیں، حوثی حملے کر رہے ہیں اور ایران کی مدد ان کی کر رہا ہے۔ اسرائیل اور غزہ کا ایشو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ IMF نے امریکی ٹیرف عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ سست شرح نمو کے وقت امریکی ٹیرف عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ عالمی معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ سربراہ IMF کا امریکی ٹیرف پر موقف۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا امریکی ٹیرف پر جوابی وار۔ امریکہ سے درآمد کاروں پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں ٹرمپ کی تجارتی جنگ عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا صدر ٹرمپ کی ٹیرف ظالمانہ اور بے بنیاد ہیں۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ کے لیے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیل UN قراردادوں اور جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فلسطینی عوام کو خوفناک بمباری، بھوک، جبری انخلاء اور اجتماعی سزاؤں کا سامنا ہے۔ سلامتی کونسل اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی ₹7.41 سستی۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں ₹7.69 کا ریلیف۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی ₹8.52 سستی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کا عندیہ۔ کہا بجلی کی چوری روک لی تو مزید سستی کریں گے۔ ڈسکوز کو فوری پرائیویٹائز کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ بجلی کے گردشی قرض کا بندوبست کر لیا۔ آئندہ 5 سال میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب یہ گردشی قرضہ کبھی گردش نہیں کرے گا۔ مئی کے مہینے کا بل قیمت میں کمی کے ساتھ آئے گا۔ کمرشل صارفین کے ریٹ میں 12% کمی آئی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ کہا 2 کروڑ صارفین کے بلوں میں تقریباً بجلی کی قیمتوں میں 48 سے 56% کمی آئی۔ یہ متوسط طبقے کے لیے بہت بڑی کمی ہے۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में कहा IMF से रिलीफ नामुमकिन था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिम्मत न हारी। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल हाल रही। PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा बिजली के निर्खों में कमी कौम के लिए कीमती तोहफा है। बिजली की कीमतों में कमी महंगाई से सताए अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के निर्खों में नुमाया कमी से अवाम दोस्ती, दूरअंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। वज़ीर-ए-आज़म ने हामी भरी है। वो कराची में MKM जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ से बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी करवाने में कामयाब होंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली की कीमत में कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। हमने हमेशा बिजली की कीमत कम करने और पानी का मसला हल करने का कहा। बिजली की कीमतों में कमी का क्रेडिट जमात इस्लामी को नहीं जाता। बल्दियाती इलेक्शन में हमारे बायकॉट की वजह से जमात इस्लामी की लॉटरी निकली। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी है। बिजली की कीमत को मज़ीद कम करना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक की निजकारी में MQM शामिल रही। तमाम हुकूमतों में IPPs को सहूलियात दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IPPs को फिक्स करके इनका काम फ्रांसिक ऑडिट कराया जाए। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर-ए-आज़म से कैनाल्स का मंसूबा बंद करने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारी सपोर्ट से हुकूमत चल रही है। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। अगर कैनाल्स बनी तो हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। पीपल्स पार्टी कभी नहरें नहीं बनने देगी। कैनाल्स की मुखालफत की जाए, पीपल्स पार्टी की नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी। 1973 के आइन और आठवीं प्रोग्राम के आगाज़ का सहरा पीपल्स पार्टी के बानी के सर सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदाबख्श में जलसा शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सदर जरदारी का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश। अपने पैगाम में कहा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम मुदब्बिर और आवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। इनके मिशन को जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के अलंबरदार थे। पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तफ़िक़ा आइन बुनियादी हुकूक की ज़मानत दी, कौम को मायूसी से निजात दिलाई। सदारती रेफरेंस पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह करार दिया। रवा साल 23 मार्च को इन्हें निशान पाकिस्तान अता किया गया जो इनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का अद्वियात खरीदारी का टेंडर कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए टेंडर से मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। टेंडर की शराइत से अहम शिक जानबूझकर खत्म की गई। टेंडर गैर शफाफ, इम्तियाजी और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत का अद्वियात की खरीदारी का अमल असर-ए-नौ कानून के मुताबिक शुरू करने का हुक्म। हुकूमत को चाहिए वाटर इमरजेंसी नाफिज की जाए। पानी के ज़िया पर क्रैकडाउन ज़रूरी है। बड़ी सोसाइटीज़ को पानी के हवाले से फाइनल नोटिफिकेशन दें। हाउसिंग सोसाइटी को पहला फाइन 1 लाख और दूसरा 5 लाख करे। इसके बाद खिलाफ वर्जी हो तो मैनेजमेंट कमेटी को सस्पेंड कर दें। जिस जगह पर कोई पाइप से गाड़ियाँ धोते नजर आए इसे सोसाइटी को सील कर दें। स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समात में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा पानी को ज़ाया होने से बचाना हमारे लिए भी ज़रूरी है और आइंदा नस्लों के लिए भी। गाँव में भी वाटर इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। अगर हमारे मुल्क में मानसून ना होता हम अब कहत में रह रहे होते। अदालत ने PDMA से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली।
जंगलात की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, कासिम वाला जंगल में लगी आग पर बरवक्त काबू पाना महकमे जंगलात की मेहनत का नतीजा है। महकमे जंगलात, रेस्क्यू और मकामी अफराद की मुश्तरका कार्रवाई से बड़ा सानहा टल गया। तमाम फील्ड स्टाफ की हौसला अफजाई की जाएगी जिन्होंने खतरात के बावजूद आग बुझाई। स्कूलों के तलबा की हिफाजत के लिए पंजाब हुकूमत का इकदाम। लाहौर समेत सूबे भर में स्कूलों के सामने जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुख्तलिफ एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक जेब्रा क्रॉसिंग के करीब ट्रैफिक आहिस्ता गुजरेगी। सदर मुमलिकत से मुतालिक सोशल मीडिया पर नाजेबा पोस्ट करने पर कराची के पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। सदर मुमलिकत के खिलाफ पोस्ट करने वाला ऑफिसर SIO इब्राहिम हैदरी तैनात है। पुलिस ने SIO अबरार शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा सुखन थाने के ड्यूटी ऑफिसर की मुद्दत में दर्ज किया गया। कराची में शहरियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाला मुनीर उर्फ गोलगप्पा गिरफ्तार। मुलजिम बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर आवाम से करोड़ों रुपए लूट चुका है। मुलजिम के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात में मफरूद था। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर यौन सुक जॉल को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सदर यौन सुक जॉल ने फौज और पुलिस फोर्सेस को आईनी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया। आईनी फ्राइज को तर्क करते हुए सदर यौन सुक जॉल ने अवाम के हकूकी पामाली की। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मॉन होंग भी ने फैसला सुनाया। आईनी अदालत के फैसले के बाद जनूबी कोरिया में 60 दिनों के अंदर सदारती इंतखाबात मुनाकिद करवाए जाएंगे। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर यौन सुक जॉल के मवाक़से का मुतालबा किया था। इसराइल की फलस्तीनियों पर बर्बरियत ना रुक सकी। 24 घंटे में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में स्कूल पर हमले में खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। शुमाली गजा में मुसलसल बमबारी से 71 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। शुमाली गजा में 24 घंटों के दौरान 1,35,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का इनखला। शोहदा की मजमूई तादाद 50,563 तजावज़ कर गई। 1,14,638 अफराद जख्मी हुए। 2028 के इलेक्शन में ओबामा से मुकाबला चाहता हूं। ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, ओबामा के साथ यकीनन एक अच्छा मुकाबला होगा। ओबामा 2 बार अमरीकी सदर रह चुके हैं। अमरीकी आइन के तहत कोई सदर तीसरी मुद्दत के लिए सदारत का इंतखाब नहीं लड़ सकता। एलोन मस्क ने मोदी हुकूमत की जानिब से आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी को अदालत में चैलेंज कर दिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स सेंसरशिप पॉलिसी से मुबर्रा है। इस पर पाबंदी खत्म की जाए। भारतीय वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से वेबसाइट्स पर एक्स के मुख्तलिफ पोस्टों को हटाया गया। एक्स पोस्टों को हटाकर भारत अपने ही आज़ादी राय कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। एलोन मस्क का मौक़िफ़। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बारिशों और खौफनाक भूगोलों से तबाही। 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मूसलाधार बारिशों और भूगोलों ने अमरीकी रियासतों टेक्सास, ओहायो, टेनेसी और केंटकी में तबाही मचाई। अमरीकी रियासत टेनेसी में एक ही खानदान के 2 अफराद खौफनाक भूगोलों की जद में आकर हलाक हो गए। अमरीकी महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिशों और भूगोलों की पेशगोई भी कर दी।